We start with question number 15, which is the continuation of this exercise we have already discussed in this previous video, question number up to 14. Now the question says there are 5 speakers A, B, C, D and E. The number of ways in which A will speak always before B is. So let us take the sequence of speaking A. Though there are 5 chances, 5 places for which A and B will speak. Now here the question is number of ways in which A will speak always before B. That is, A will speak before B. That is, how many ways A will speak always before B. So it is dependent on B. So we will say look at the placement of B and find out how many choices for A has to. Suppose B is the first speaker. When B is the first speaker, then A has no choice. So here no choice for A. If B is the second speaker, for B was the first speaker, it has no choice. If B is the second speaker, then A has one choice, that is here. It implies A has one choice here, so the choice for A is 1. In the same case, if B is the third speaker, here if B is the third speaker, then A has two choices, first and second, before B. That is, if B is the third speaker, then for A has two choices. Similarly, if B is the fourth speaker, then A has these three choices, first, second and third. If B is fourth speaker, A has three choices. And similarly, if B is the last speaker, the first 4 places are vacant for A. So A has 4 choices to speak. So if B is the 5th speaker, it has 4 choices. Therefore, total number of ways A will speak always before B is 1 into 2 into 3 into 4, that is 24, which is the solution of this answer. Therefore, the correct option is A. Question number 16. There are 10 trains playing between Calcutta and Delhi. The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different train is. So here इस क्वेश्चन का मतलब है जिस ट्रेन से वो पहले जाएगा उससे उसको लौटना नहीं है वापस, मतलब उस एक को छोड़ के उसके पास बाकी सब चॉइसेस रहती है. सो हम इस तरह कहेंगे चॉइसेस फर्स्ट कलकत्ता टू दिल्ली, कितनी ट्रेन है 10, सो इट हैज़ 10 चॉइसेस. हम जानते हैं आउट ऑफ 10 चॉइसेस में से ये एक यूटिलाइज कर लेगा, यानी कि एक वो इस्तेमाल कर लेगा, उस एक को छोड़ के रिटर्न में उसको वापस आना है, यानी कि दिल्ली टू कलकत्ता बाय अ डिफरेंट ट्रेन. दिल्ली टू कलकत्ता के लिए उसको अब 9 चॉइसेस रहेगी. सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी? टोटल होगी सिंपली 10 into 9, that is 90. Therefore, option B is the correct option. Question number 17. The number of ways in which 8 sweets of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages, so that the largest sweet always goes to the younger, assuming that each one of them gets a sweet. First, here it is restricted permutation, that is, in this case the largest sweet is for a younger. So one choice here is restricted for a younger to distribute the sweet. So one is to be excluded, that is, इसका मतलब हो गया जो एक स्वीट है वो
एक के लिए हमने स्पेशल रखी है यंगर के लिए। सो टू फॉर ए यंगर इट हैज़ वन चॉइस, यानी कि उसको एक ही बड़ी स्वीट देनी है और वो भी बड़ी, क्योंकि आउट ऑफ 8 में से जो रेस्ट ऑफ 7 है वो इसको नहीं दी जाएगी, इसके पास एक चॉइस है। नाउ अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो अब कितने स्वीट्स है और कितने में 8 स्वीट्स है और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 8 पीपल में। सो 8 स्वीट्स में से हमने एक काटी तो हमारे पास रेस्ट बची 7 स्वीट्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग 7 पीपल पर्सनस, यानी कि 7 स्वीट्स को 7 पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमें पता है इनको हम कर सकते हैं 7p7 में और यू कैन से 7 फैक्टोरियल में। दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड कुल मिला के टोटल चॉइसेस कितनी होगी अब, देयरफॉर टोटल चॉइसेस होगी 7 फैक्टोरियल यानी कि 7p7 इंटू 1 फैक्टोरियल, जो एक के लिए एक ही चॉइस थी। सो ये फिर से आ जाएगा 7 फैक्टोरियल which is definitely equal to option B. Therefore option B is the correct option. Question number 19. The total number of ways in which 6 pluses and 4 minus signs can be arranged in a line such that no 2 minus sign occur together is, मतलब जो भी अरेंजमेंट हमें करनी है -2 साइनस से ऑकर नहीं होनी चाहिए 2 बार, और 2 बार से भी ज़्यादा भी, मतलब ये एक ही बार माइनस साइन आ जाए। सो लेट अस रिकॉल इफेक्ट। पहले हम ये देखेंगे, ये हमने पढ़ चुके हैं, तो हम कहेंगे सपोज नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टेकन ऑल टुगेदर व्हेन p ऑफ देम और अलाइक एंड q ऑफ देम और अलाइक। इसका मतलब ये है कि हम कितनी परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट n थिंग्स बना सकते हैं जब उसमें से हम p थिंग्स अलाइक उठा के ले चलते हैं और q थिंग्स अलाइक लेके चलते हैं। सपोज रेस्ट ऑफ देम और डिफरेंट, सपोज अगर मैं कहूँगा p प्लस q प्लस और जो बाकी बचते हैं सपोज दे आर और ये एक एक बार है, यानी कि इनमें p थिंग्स अलाइक है, q थिंग्स अलाइक है और r थिंग्स डिफरेंट है। दिस इज n और समवट सिमिलर। सो हमने पढ़ा था, फिर हम कहते थे इनकी परम्यूटेशंस होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। अच्छा, जो r है, r डिफरेंट थिंग्स है और ये एक एक है, तो फिर हम इनका लेते थे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसी तरह r टाइम्स तक 1 फैक्टोरियल। कुल मिला के हम इस तरह लिखते थे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। दीज क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं, आई थिंक इट वाज इन एक्सरसाइज 5.5a में, पहले ही 1-2 क्वेश्चंस में आए थे इस तरह। सो यहाँ पे यही हम रूल यूज़ करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल प्लेस द प्लस साइन्स एट डिफरेंट पोजीशंस, यानी कि मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस रख सकता हूँ। मेरे पास 6 साइन्स ऑफ प्लस है, तो इनको मैं 6 डिफरेंट प्लेस पे मैं पहले फिक्स कर देता हूँ। और हम जानते हैं इस तरह, इस तरह और इस तरह। और उसके बाद मेरे पास चॉइसेस रहती है माइनस को छोड़ने की, और वो डिफरेंट भी आ जाएगी। सपोज़ यहाँ पे भी मैं माइनस छोड़ सकता हूँ, इस प्लेस पे भी, इस प्लेस पे भी, चलो मैं सर्कल से ही बना देता हूँ। इस प्लेस पे भी मैं माइनस रख सकता हूँ, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। नाउ अगर हम देखेंगे मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई 6 प्लस को छोड़ने की। अगर ये डिफरेंट प्लसेस होते तो मैं कह सकता था डायरेक्टली 6p6, बट एवरी प्लस 6 प्लसेस आर अलाइक टर्म्स, यानी कि यहाँ पे भी प्लस वही है और ये भी वही है, ये प्लस भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। दीज 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आर सेम एंड अलाइक। सो इसको मैं कह सकता हूँ, जो मैंने पहले कहा था, इसको मैं 6 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, जो मैंने अभी कहा था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल व्हेन p टर्म्स एंड q टर्म्स आर अलाइक। बट यहाँ पे प्लस है 6s और
आउट ऑफ 6 वो 6 प्लसेस सेम है, सो इसलिए नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिक्स प्लस to number of choices to arrange pluses is 6 factorial divided by 6 and we know this is equal to 1. सो मेरे पास एक ही चॉइस रहती है इन 6 प्लसेस को इस तरह अरेंज करने की, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा आइडिया है, एक ही अरेंजमेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि ये सभी 6 प्लसेस सेम है, इसलिए ये आपको पता ही है। अगर ये डिफरेंट थिंग्स होते तब मैं ये इस तरह नहीं कह सकता था 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तब 6 फैक्टोरियल आता है। नाउ उसको छोड़ के अब मैंने अभी बताया कि जो ये सर्कल्स अब रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम फिक्स करते हैं माइनस साइनस को, बट कितनी पोजीशंस है जहाँ पे मैं माइनस साइनस को फिक्स कर सकता हूँ? डेफिनेटली दीज आर 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 प्लेसेस है वैकेंट जहाँ पे मैं माइनस साइनस को यूटिलाइज कर सकता हूँ। माइनस के लिए 7 प्लेसेस है, बट आउट ऑफ दिस 7 प्लेसेस मेरे पास कितने साइनस है खाली माइनस के? डेट इज़ 4, यानी कि इन 7 प्लेसेस में से मैं खाली 4 प्लेसेस को फिल कर सकता हूँ माइनस साइन से। नाउ इसको मैं कर सकता हूँ 7p4 वेज से, 7p4 वेज से, बिल्कुल इसी तरह लॉजिक। बट यहाँ पे भी वही होगा जो मैंने अभी बताया था कि इसमें 4 प्लसेस सेम है, यानी कि सॉरी माइनसेस, ये माइनस साइनस है 4, तो सभी आर अलाइक टर्म्स। सो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी? अब टोटल अरेंजमेंट फॉर माइनस साइनस वो होगी डेफिनेटली 7p4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, वो होगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ डिनोमिनेटर में इसी तरह आ जाएगा 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल और फिर से 4 फैक्टोरियल। सो ये आ जाएगा, अच्छा ये इस तरह है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की थी इसको सॉल्व करने में, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं 7p4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। नाउ हमें पता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लसेस एंड 4 माइनस साइनस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो माइनस साइन कैन ऑकर। पहले हमने देखा 6 प्लसेस के लिए जो टोटल अरेंजमेंट होगी, अब फाइनली सो इनका मल्टीपल आ जाएगा। प्लसेस के लिए मुझे एक साइन आ गई, एक अरेंजमेंट आ गई, इसके लिए आ गई 7p4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। वी नो 7p4 is 7 factorial divided by 7 minus 4 is definitely 3 factorial and further it is divided by 4 factorial। 7 factorial को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर में जो ये दो थे तो उनको मैंने मल्टीप्लाई किया है। नाउ हियर दिस एंड दिस विल कैंसल and it will be 7 into 6 into 5 into 4 divided by 4 factorial। 4 factorial is 24। अब 24 किसके साथ कैंसिल होगा? ये इस तरह होगा 7 into 5 is 35 into 24 divided by 24, क्योंकि 6 4 24। So option C is the correct option। The number of ways in which the letters of the word mobile or arranged so that consonants always occupy the odd places is। पहले हम देखेंगे इसमें वॉवेल्स कौन से है और कॉन्सोनेंट्स कौन से है। वॉवेल्स है O I E और कॉन्सोनेंट्स है M, फिर है B, फिर है L। नाउ दिस इज अ 6 लेटर वर्ड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे है ऑड प्लेस,
ये भी है ऑड प्लेस और ये भी है ऑड प्लेस। एम आई रॉन्ग? यस, ये है इवन प्लेसेस। सो जो रेस्ट है वो है ऑड प्लेसेस, यानी कि दिस इज ऑड प्लेस, दिस इज ऑड प्लेस, दिस इज ऑड प्लेस। नाउ ऑड प्लेसेस वी हैव टू फिल द ऑड प्लेसेस विद द कॉन्सोनेंट्स। मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट्स है, सो इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, मेरे पास 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस को 3 वर्ड से फिल करना है, तो वी कैन डू इट 3p 3 ways, यानी कि टू फिल द ऑड प्लेसेस कैन बी फिल। मेरे पास 3 वर्ड्स है, 3 प्लेसेस फिल करनी है, सो इट कैन बी डन इन 3p 3 ways, डेट इज 3 फैक्टोरियल। इन अदर वर्ड वेज यू कैन से, यहाँ पे मैं 3 वेज से फिल कर सकता था, यहाँ पे 2 वेज से, यहाँ पे 1 वे से, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो एक मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। इसी तरह जब मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे अब उसको भी यूज़ किया, 2 हो गए। जब मैं इसको फिल करता हूँ तो आउट ऑफ 3 वर्ड से मैंने 2 किए हुए हैं, यानी कि पहले मैं 3 वे से, फिर 2, फिर 1 वे से। सो सेम प्रोसेस है, 3 फैक्टोरियल 6। नाउ इवन प्लेसेस पे आपके पास चॉइस ही नहीं रहती कि आप कोई कॉन्सोनेंट दे पाओगे, क्योंकि मिलता ही नहीं है एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे खाली वावेल्स ही रह पाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स मिलते तो मैं तब कह सकता था कि मैं इवन प्लेसेस में कॉन्सोनेंट्स दे सकता था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन खाली ऑड प्लेसेस पे थी। कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। अच्छा, ये ऑड प्लेसेस हमेशा ऑक्यूपाई करनी चाहिए कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, यानी कि इवन प्लेसेस पे भी मैं नहीं दे सकता हूँ। अब इन शॉर्ट यहाँ पे 3 वावेल्स है, 3 वावेल्स को 3 इवन प्लेसेस पे देना है, यहाँ पे इसको भी 3p 3 वेज से दे सकते हैं, डेट इज 3 फैक्टोरियल, डेट इज 6। सो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल हो गया 6 × 6, डेट इज 36। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन 21. 5 persons are sitting in a round table in such a way the tallest person is always on the right side of the shortest person. Suppose these are sitting in a round table like that, and there are 5 persons, and shortest and tallest. This is like that. One is shortest and one is tallest. Now the rest 3 are like that. If I say like that, this is shortest, this is the tallest person. Now these are 5 persons. अब मैं क्या करता हूँ, shortest is always on the right side of tallest. अच्छा, tallest person is always on the right side of shortest. चलो कोई नहीं, एक ही माने रखता है। जो tallest है वो राइट साइड है हमेशा शॉर्टेस्ट पर्सन की। सपोज ये 2 पर्सन, शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट, इनको मैं एक मानता हूँ एज ए 1 पर्सन, तब जाके इस राउंड टेबल में कितने पर्सन आ गए? जब मैं इन 2 को एक ही चॉइस मानता हूँ, एक ही पर्सन, तब राउंड टेबल में 4 पर्सन है। देयरफॉर 4 पर्सन आर ऑन ए राउंड टेबल। अब इनकी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी हमें पता है, ये होगी 4 - 1 फैक्टोरियल, that is 3 factorial, which is 6. But within these 2, shortest and tallest, within shortest and tallest, इनके बीच में 2 चॉइसेस होती है। इसको मैं इस तरह लिखूंगा, अगर मैं देखूंगा शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट के बीच में कितनी चॉइसेस है, वो है 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 है। बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी है, टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन राइट साइड ऑफ टॉलेस्ट पर्सन, यानी कि टॉलेस्ट पर्सन हमेशा राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन है। सो इसके पास एक ही चॉइस रहती है, ना कि दूसरी चॉइस। यानी कि इस तरह अगर मैं कहूँगा शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, ये 2 चॉइसेस थी। अब इन 2 चॉइसेस में से एक नहीं होगी, क्योंकि वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम उसी को ले रहे हैं जिसमें टॉलेस्ट पर्सन ऑन राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन है।
तो इसमें एक ही चॉइस रहती है विद इन शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट, विथ टॉलेस्ट इज ऑन राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन। सो यहाँ पे एक ही चॉइस रहती है, देयरफॉर टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, टोटल चॉइसेस हो गई 6 इंटू 1 दैट इज 6। अच्छा, ऑप्शन ए में 6 आया, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।